Okay, welcome everyone to the second lecture of petroleum refinery in these online classes. And today's topic that we will cover is the coking process. Before I go on to coking, can anyone remember what we did in the last class and how is coking similar to that process that we did? Anyone? सर टेम्परेचर का फर्क है बस इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा हाँ, ज़्यादा होगा। सही है। और सिमिलैरिटी क्या है दोनों के बीच में? सर उनके जो फीट सर है फीट थर्मल सेम होती है क्रैकिंग तो इनकी। नहीं है, Thermal दोनों cracking थर्मल process. क्रैकिंग है। Yes, and we had already discussed that what is thermal cracking. Thermal cracking is the providing of the heat to break a large residuum molecule into smaller, more useful versions. So based on this definition of thermal cracking, and before I go on in the slides, can anyone guess what would be the definition of coking in general? Any guesses? Again, I repeat, there is no such thing as a प्रोसेस wrong answer. We are all here to learn. So any guesses? What is a coking process? द प्रोसेस इन विच सर प्रोड्यूस coke is Okay, produced through heating. that is correct. That is one point. Coke is going to be produced. What else? बाय हीटिंग वैक्यूम रेजिड्यू और Yeah, हेवियर कंपोनेंट्स। exactly. So both the answers were correct in this statement. Coking is basically a refinery process in which the heavy molecules such as the vacuum residue, they are broken into more useful products by the supplying of heat. Hence, it is a thermal cracking process. That is the first important point. The second point is that a coke, a coke-like substance is formed, which is like coal. So, because of that, we gave the name coking. Okay, moving on. The objectives that I will cover in these lessons are that at the end of this lecture, a student will be able to understand the coking process. They will be able to understand the types of coking process used, understand the process as well as the process diagrams of the coking process. And number 4, distinguish between the major types of coking process which are used in the industry. Before I move on, does anyone have an idea of what type of coking processes are used? सर फ्लूइड कोकिंग, फ्लेक्सी कोकिंग, Okay, yeah. Delayed cookings. डिलीट। What are the main types of coking, or how many types of coking do you think exist? The main broad types. Any guesses? 1, 2, 3. सर यही है। अच्छा, इन जनरल दो तरह की कोकिंग प्रोसेस होती हैं। एक होती है डिलेड, दूसरी होती है आपकी फ्लूइड कोकिंग. Flexi coking is a part of a fluid coking or a subtype of a fluid coking. And similarly, delayed coking has its subtypes. Some examples of delayed coking include needle coking, sponge coking, and shot coking. But if anyone ever asks you that how many coking processes are there, the answer is 2, delayed and fluid. Is everyone with me on this page? आगे ओके चलो. ओके Yes sir. जी सर। Yes sir. Yes. चलें. Up we come on to coking. This is a more severe form of thermal cracking. The only difference between coking and visp breaking is the temperature that is provided in this process. Visp breaking was a mild type of thermal cracking. Coking is a more severe type of thermal cracking, which means that the heat is greater as compared to visp breaking. Number 2, similarly to the previous process, the feedstock is residual, which may resist in cracking by other means. What do I mean by other means over here? What are other means? सर रिपीट करें क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर लिखा है feedstock is a residual which may resist cracking by other means. Other means क्या हो सकते हैं? मतलब ये आपको नाम बता रहा है कि residual is the feedstock. तो residual सबसे heavy component होता है.
तो इसीलिए हम थर्मल क्रैकिंग यूज कर रहे हैं। दूसरे मींस क्या हो सकते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम रेजिडुअल को इस क्रैकिंग से कर रहे हैं, लाइक व्हाट अदर मींस? सर मतलब कैटलिस्ट में कैटलिस्ट एग्जैक्टली, क्रैकिंग नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा सल्फर होता है इसके अंदर। एग्जैक्टली। सो वी जो कैटालिटिक क्रैकिंग नहीं कर सकती, या आपकी क्या बोलते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग, व्हाट वाज द हाइड्रो अदर टाइप? क्रैकिंग, Hydro हाइड्रो cracking, क्रैकिंग भी नहीं कर sorry. सकते। Yeah, hydro cracking. Hydro cracking and catalytic cracking, they cannot achieve this on the residue, so we use the thermal cracking. In certain cases, cheaper ways for light distillates. Why do we want the light distillates? I mean, I can use the heavy residue, but why am I focusing on light distillates? इसकी क्या वजह हो सकती है? सर सबसे ज्यादा पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। डिमांड उनकी सबसे ज्यादा नेफ्था, डीजल, ये एग्जैक्टली, गैसोलीन। एग्जैक्टली। डिमांड आपकी लाइट प्रोडक्ट्स की ज्यादा है, जैसे आपकी गैसोलीन हो गई, नेफ्था हो गई, डीजल हो गया, और लाइट गैस ऑयल्स वगैरह हो गए। डिमांड हैवी सब्सटेंस की नहीं होती है, इसीलिए हमें इसको तोड़ना पड़ता है। पेट्रोलियम कोक इज अ बाय प्रोडक्ट। हमेशा कोकिंग प्रोसेस के अंदर देयर विल बी अ बाय प्रोडक्ट पेट्रोलियम कोक, and this is where the process gets its name from. And this product can be a valuable product. The reason why I'm saying it's a valuable product, it can be used in other industries such as the steel industry. One use of petroleum coke is to make electrodes. And what do you think the coke is dependent upon, or what element influences the coke or the quality of coke? Usually what element? The सर carbon. हैवी क्रूड होगा तो ज्यादा कोक होगा उसके अंदर। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कोक है। अब मैंने आपको क्लू दिया है, मैंने आपको कहा विच एलिमेंट कैन डिटरमिन द नेचर और द टाइप ऑफ कोक। द क्लू ओवर हियर इज Carbon, sir. एलिमेंट। कार्बन तो करेगा, मगर उसके अलावा कार्बन तो हर कोक में होगा, कार्बन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कौन सा एलिमेंट है जो गुड क्वालिटी या बैड सर क्वालिटी? सल्फर कंटेंट तो नहीं करेगा सर? सल्फर, सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट यकीनन होगा, क्योंकि ये रेजिड्यूअल फीडस्टॉक है। जितना आपका सब्सटेंस हैवी होता है, उतना उसके अंदर सल्फर ज्यादा होगी, एरोमेटिक ज्यादा होंगी। तो इसीलिए वैल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सल्फर कंटेंट। कार्बन अपनी जगह है, पर सल्फर भी उसके ऊपर एक रोल प्ले करेगा। उसके अलावा द कोक्स कैन बी फॉर्म बाय टू मैकेनिज्म्स। I am sure you've done these mechanisms before, so this is not part of this lecture. One is the dealkylation, one is the dehydrogenation. All I want to tell you in these two processes is dehydrogenation is the route that is preferred. Dealkylation में क्रॉस चेन्स इतनी ज्यादा होती हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। क्वालिटी डिहाइड्रोजनेशन से ज्यादा होती है या बेहतर होती है, इसलिए वी प्रेफर द रूट डिहाइड्रोजनेशन। यस, अगर हमारे पास और कोई तरीका या कोई रास्ता ना हो, तो वी विल हैव टू गो ऑन टू dealkylation. Then this slide I already mentioned before that there are two types of coking, which are the delayed coking and the fluid coking. They have their subtypes. Subtypes of delayed include sponge coking, needle coking, and shot coking. Subtypes of fluid coking includes flexi coking. Delayed coking. Okay, before I go on to delayed coking, this is a process diagram. Now I know that you are in the 7th semester right now, and before going to 7th semester, you must have done CPT1, CPT2, process and instrumentation. So you are able to read this process diagram. I will teach you the process diagram. You don't have to be scared about it, but I just want an output from you guys. Are you able to read this? What do you understand in this diagram? So let's go on to it in this manner. How many major components can you see in this diagram, which are part of the coking process, delayed coking process? The four major components. Okay, I've even given you a hint. इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? चार मेन चीजें। सर फर्नेस है बिल्कुल। और One component of delayed coking is definitely the furnace. Purpose of the ड्रम हो furnace? गया, Purpose of the furnace? क्रैकिंग, Cracking and to हीटिंग। provide heat. ठीक है, फिर इसके बाद
ड्रम हो गया, कोकर ड्रम। ड्रम अच्छा, कोकर ड्रम का बस थोड़ा सा गेस वर्क भी करें, अगर आप रॉन्ग रूट पे होंगे तो मैं आपको रास्ता बता दूंगा। कोकर ड्रम का उसके बाद इंपॉर्टेंस सर यहाँ सारी पे कुकिंग कुकर एक ड्रम्स में होती है। बिल्कुल, यहाँ पर कोकिंग होगी, मेन कोकिंग रिएक्शंस यहाँ पर होंगे, सही है। तीसरी चीज सर फ्रैक्शनेटर, फ्रैक्शन फ्रैक्शनेटर, इधर क्या होगा? सही है, सेपरेशन होगी यहाँ पे कंपोनेंट्स की। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेपरेशन होगी। चौथी, चलें चौथी इतनी ऑब्वियस या नजर नहीं आ रही, बट चौथी इज द स्ट्रिपिंग सेक्शन। सो इन एनी delayed cooking process there are four major components. There is the furnace, there are the coker drums, there is the fractionator, and there is the stripping section. I can easily tell you the steps, but before going to the steps I want you सर to have a कॉलम के visual. अंदर ही होगा, जी कॉलम के अंदर ही होगा स्ट्रिपर सेक्शन, या कॉलम से बाहर होगा स्ट्रिपर नहीं सेक्शन? बाहर ठीक। है। I can but to give you an idea, अगर आप इस पिक्चर को देखें, हम दोबारा वर्डिंग के ऊपर आएंगे। अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर, सबसे नीचे देखें, look at the bottom, the vacuum residue feed is being provided. So initially in the cooking process you provide the vacuum residue feed inside the fractionating column. So the feed is fed in the fractionating column, and what happens to the feed? If you circle that feed line, you're going straight, then you're going up. What is the feed passing through before going to the fractionating column? I can give you the answers, but I want you to सर हीट एक्सचेंज हो जाएंगे, exactly. I want you to give these हीट answers एक्सचेंजर। yourself. Bilkul, that is correct. Heat exchangers. So the feed is being preheated. After going into the after passing through the heat exchanger, it goes at the bottom of the fractionating column. From the fractionating column, the heavy substance, the feed, that will go into the furnace. You can see your furnace over there. On the top of the furnace, you will see a very important component is being added, steam. Any idea why steam is added? सर फ्लोएबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है वैक्यूम रेसिड्यू की। नहीं, विस्कोसिटी का ताल्लुक तो आपका हीट के साथ है, आपने हीट प्रोवाइड कर दी है, स्टीम क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? सर तो फर्नेस में कोकिंग ना हो। Exactly. So you do not want to provide the coking inside the furnace. फर्नेस के अंदर आपका रेजिडेंस टाइम सबसे कम दिया जाता है, आपका मेजर टाइम आपके कोकिंग ड्रम्स में दिया जाता है। आप चाहते ये हैं कि आपकी जितनी कोकिंग हो वो आपके ड्रम के अंदर हो। फर्नेस के अंदर कोकिंग रोकने के लिए आपने स्टीम लाजमी देनी पड़ती है। स्टीम फर्नेस के बाद आपका जो एरो, अगर आप इसको ट्रेस करें, ये कोकर ड्रम में जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कोकिंग ड्रम है। एक पूरी ऑपरेशनल प्रोसेस होने के लिए मिनिमम आपको 2 कोकर ड्रम लाजमी हैं। कभी कभी होता है कि इंडस्ट्री 3 कोकर ड्रम ले या 4 ले या मल्टीपल ले, या मिनिमम आपके पास 2 कोकिंग ड्रम होते हैं। एक वक्त के अंदर एक फिल हो रहा होता है तो दूसरा एम्प्टी हो रहा होता है, यानी एक के अंदर कोकिंग हो रही होती है और दूसरे के अंदर डी कोकिंग हो रही होती है। एंड दिस हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, यानी एक दिन पूरा ये कोक हो रहा होता है, दूसरे दिन डी कोक हो रहा होता है, इसीलिए इसका नाम डिलेट कोकिंग निकला गया है। अब अगर आप इसी पिक्चर पे देखें, इस पिक्चर के ऊपर दोनों ड्रम्स के ऊपर 2 चीजें लिखी हुई हैं। जिसके अंदर कोक भर रही होती है उसको हम बोलते हैं फिलिंग ड्रम, जिससे कोक रिमूव होती है या डी कोकिंग हो रही होती है उसको हम कटिंग ड्रम बोलते हैं। वी यूज हाइड्रोलिक्स, यानी वी ऐड वाटर टू रिमूव द कोक, एंड हेंस दिस इज नोन एज द कटिंग ड्रम। Okay, from the coking drums, we see that again something is going into the fractionating column. Just by common guesswork, what do you think is going to go in the fractionating column? What type लाइटर of component? कंपोनेंट्स है ना, लाइटर Exactly. कंपोनेंट्स। The lighter components or the vapors
they will go into the fractionating column and separate over there. The coke and the heavy residues are going to remain back inside the coker. Now there is one very important thing which is mentioned in the words, but it is not mentioned in this diagram, which should have been done on these coking drums. What सर is that one क्वेंचिंग process which should have been done? क्वेंचिंग Quenching. होगी सर. Quenching is, you need quenching 100% over here. Why do you need quenching? सर हैवी कंपोनेंट जो जा रहे होंगे ना उसके साथ पेपर के साथ उसके लिए उसको क्विंच करने के लिए ताकि वो वापस एक रीजन तो ये है कि उसको रिसाइकल करना होगा, हेवियर कंपोनेंट्स को आपको क्वेंच करना होगा, दैट इज वन रीजन. बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन दूसरा रीजन है, recall whisk breaking. Why did we use a quencher in whisk breaking or a quenching process? क्यों उसमें कोकिंग ना हो ताकि किसमें कोकिंग ना हो? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ना हो ताकि सर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अंदर. में. You have to keep your fractionating column safe from coke to be produced, because if coke is produced, the separation is not going to be good, the fouling is going to take place, your equipment is going to break down. So before the fractionating column, the major reason quenching is done is so that coke is not produced in the fractionating column, and the second reason is, as someone said, to recycle the process and to prevent the coke from escaping. So in this case, there are two reasons for quenching. In whisk breaking, there was one reason for quenching. Now I will go back to whatever we've discussed over here. That was through the picture, and now we are going with the wordings. Delayed coking is a type of a thermal cracking process. The furnace supplies heat for the coking reactions. The coking will take place in drums which operate continuously on a 24-hour filling and a 24-hour emptying cycle. Minimal amount of time or residence time is given in the furnace. And where would the maximum residence time be given? Maximum time कहाँ पर दिया जाएगा? फ्रैक्शनेटर में नहीं, कोकर ड्रम. देखिए 24 घंटे की साइकिल है, कोकर ड्रम में मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा. Sufficient time is allowed in the drums where the actual coking takes place. Hence it is called delayed coking. नाम ही इसका टाइम देने की वजह से आया है. अगर आप इतना रेजिडेंस टाइम नहीं देते या प्रोसेस को डिले नहीं करते तो ये प्रोसेस का नाम डिलेड कोकिंग नहीं होता, सिंपल कोकिंग प्रोसेस कर देते. Coke is rejected in the drum, which increases the hydrogen to carbon ratio of the other products. When your coke, your carbon is going to be rejected in the drum, जो आपके बाकी जो products होंगे उनका hydrogen carbon to ratio वो बढ़ जाएगा. The feed to the coker is usually vacuum residue with a high amounts of asphaltene, resins, aromatics, sulfur and metals. Here I'm going to ask you one question. What is the difference between an asphaltene and resin, and which is the heavier component? सर एस्फाल्टीन और रेजिन में क्या फर्क है ये पूछ रहे हैं. एस्फाल्टीन और रेजिन में क्या फर्क है? हेवियर कंपोनेंट इसमें से कौन सा है ये मैंने पिछली क्लास में बताया था. चलें पहले ये बताएं कि which is the heavier component. एस्फाल्टीन है. रेजिन के अंदर एस्फाल्टीन होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं रेजिन. तो फर्क क्या है? ये मैंने मान लिया कि एस्फाल्टीन आपका हेवीएस्ट कंपोनेंट है. देयर इज नो कंपोनेंट व्हिच इज हेवियर देन एस्फाल्टीन. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्फाल्टीन एंड रेजिन? रेजिन एस्फाल्टीन के अंदर पाया जाता है. क्या हुआ? जो रेजिन होते हैं सर वो एस्फाल्टीन के अंदर पाए जाते हैं. अच्छा, कोई और आंसर? The main difference is that asphaltene is insoluble in liquid components such as pentane or heptane. इस liquid components में asphaltenes insoluble होंगे. जो आपके resins हो जाएंगे वो dissolve हो जाएंगे, soluble हो जाएंगे. That is the major difference between these two components. They both are heavy components,
But if anyone asks you the difference between asphaltene and resins, the major difference is asphaltene is insoluble, resin is soluble in components like pentane, hexane, organic liquid components. Okay, that was a little off information. तो सर Then we कोक go में और again. एस्फल्टीन में कोई फर्क हो? किसमें? कोक में और एस्फल्टीन में? कोक और एस्फल्टीन में, कोक आप वैसे कार्बन को बोलते हैं, कार्बन का कंटेंट का फर्क होगा। देखें, एस्फल्टीन और बिटुमिन में कोई फर्क नहीं होता, वो दोनों एक चीज होते हैं। कोक इज नॉट एस्फल्टीन, यू कैन नॉट से इट्स एस्फल्टीन, इट्स जस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट जिसका उसको रेशियो के ऊपर फर्क होता है। सर वैक्स भी एक चीज होती है, वैक्स। क्या चीज? वैक्स होती है ना, एक वैक्स एस्फल्टीन। जी, वैक्स आपके ये इसके में उसका जो प्रोपोर्शन होता है कि कितना इसके अंदर लिक्विड आ रहा है, कितनी इसकी एपीआई का फर्क आ रहा होता है, तो सॉलिड कितना है, वैक्सेस आपकी सॉलिड के लिए यूज होता है, एक सर्टेन प्रमोशन होता है, एक रेशियो होता है, उसके ऊपर वैक्स होते हैं। बट वैक्स इज नॉट द सेम एज एस्फल्टीन। यू कैन से वैक्स इज अ क्या बोलें, सबसेट हो सकता है, मगर वैक्स और एस्फल्टीन सेम चीज नहीं है। ये वही बात कहने की हो कि आप बोलो हैवी गैस ऑयल, लाइट गैस ऑयल और मीडियम गैस ऑयल में क्या फर्क है? हैं तो तीनों गैस ऑयल, अमाउंट उसके एपीआई ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आप एक बात करते हैं, डिपॉजिटेड कोक कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एस्फल्टीन। जो आपकी जितनी भी डिपॉजिट कोक होगी वो ज्यादातर आपके एस्फल्टीन कंटेन करेगी, सल्फर कंटेन करेगी और मेटल्स कंटेन करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? नीचे वाली लाइन में नहीं जाएं, ऊपर वाली लाइन में बता दें। सिर्फ इस लाइन से आपको क्या समझ आती है? इफ योर डिपॉजिटेड कोक कंटेन्स मोस्ट ऑफ एस्फल्टीन, सल्फर एंड मेटल्स, व्हाट डज दैट मीन? सर जो कोक डिपॉजिट होगा ड्रम के अंदर, उसके अंदर एस्फल्टीन और सल्फर ज्यादा होंगे। बिल्कुल, that means that your drum is going to contain these components, your asphaltene, sulfur, metals, these are going to be left behind. बाकी जो ड्रम से बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट्स लाइक अनसैचुरेटेड गैसेस और दूसरी जो एरोमेटिक लिक्विड्स हैं, जो आपके नेफ्था गैसेस वगैरह होंगी, वो आपके सारे कोक ड्रम से बाहर चले जाएंगे। अब हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की जगह आते हैं। वो एक मैंने थोड़ी सी एक आपको आउटलाइन दी थी। द प्रोसेस डायग्राम ऑफ डिलेड कोकिंग इज शोन ऑन द प्रीवियस स्लाइड। 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, द फर्नेस, 2 कोकर ड्रम्स, फ्रैक्शनेटर एंड द स्ट्रिपिंग सेक्शन दैट आई मेंशन्ड। द फीड इज वैक्यूम रेजिड्यू, इट इज प्रीहीटेड वाया हीट एक्सचेंजर्स। व्हाई विल बी प्रीहीटेड? आई मीन वी आर गोइंग टू पुट इट इन द फर्नेस। हमें ये इतनी प्रीहीट करने की जरूरत क्या है? हम फर्नेस के अंदर डाल रहे हैं, फर्नेस के अंदर टेम्परेचर हाई होगा, तो इसको प्रीहीट फर्नेस क्यों का कर लोड, रहे हैं हम? फर्नेस का लोड कम होगा सर इससे। और क्या रीजन है? चलें, वो मैंने बोला, और क्या रीजन है? सर वो जो हमारे प्रोडक्ट्स निकल रही है ना, उनकी वो भी कूल डाउन हो जाएंगी। और कुछ सोचें जरा। सर एक तो इकोनॉमी होता है और दूसरा थर्मल शॉक्स वगैरह के लिए। अच्छा, एक चीज आप लोग मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचें कि अगर हम वैक्यूम रेजिड्यू की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम रेजिड्यू क्या अंदर एपीआई क्या चीज विस्कोसिटी होती भी, इसकी है? विस्कोसिटी एग्जैक्टली, भी मेंटेन करने के विस्कोसिटी, लिए हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। विस्कोसिटी कम करने के लिए। वो आगे कैसे पहुंचेगा? थोड़ा तो आप उसको विस्कोसिटी कम करोगे ना, थोड़ी सी हीट तो दोगे। तो जब भी आप देखें वैक्यूम रेजिड्यू की बात करते हैं ना, तो इमीडिएटली आपको विस्कोसिटी क्लिक करनी चाहिए, बिकॉज पूरा बेस ही पेट्रोलियम रिफाइनरी के कंपोनेंट्स का यह है, एपीआई, ग्रेविटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, यही 3 टर्म है हर फ्रैक्शन के लिए। सो द फीड वीआर इज प्रीहीटेड वाया हीट एक्सचेंजर्स and it will enter the bottom of the fractionating tower as I had mentioned. The light components of the feed are flashed off. उस फीड के अंदर जो लाइट कंपोनेंट्स हैं वो उसी वक्त फ्रैक्शनेटर के अंदर फ्लैश ऑफ हो जाएंगे। द रिमेनिंग ऑयल इज फेड टू द कोकिंग फर्नेस. द स्टीम इज इंजेक्टेड इन द फर्नेस and I had told you before why steam is added. For those of you who came late or who missed it, steam is added to prevent the Cooking. premature cooking.
The feed is heated in the furnace to a temperature range of 480 to 550 degrees. ये देखिए, this temperature 480 to 515 degrees is clearly more than the whisk breaking temperature. After the end of this lecture, compare the two temperature ranges. You will see that this temperature is slightly higher. Therefore, this is a more of a severe thermal cracking technique than whisk breaking. Okay. The liquid vapor mixture from the furnace passes into one of the two coking drums. At one time, it is going to pass into one coking drum. It is a continuous process. So I had mentioned a minimum of two coking drums are required. One is in the operation for coke accumulation. The other is out of service for de-coking process. The coke is deposited in the drum for a period of 24 hours. एक बात मुझे सर ये इसमें एक बतानी सवाल है थी। अब बोलें। सर, ये डिलेड जो एक ड्रम हम जो फिल कर रहे होंगे उसके लिए तो कम टाइम चाहिए होगा, लेकिन जो दूसरा ड्रम होगा जो पहले से फिल होगा उसको तो हम 24 आवर्स दे रहे हैं, ये उसके मुकाबले में ज़्यादा नहीं होगा? मतलब एक ड्रम हम जो है फिल कर रहे हैं उसका टाइम कितना होगा? आपने सेटलिंग टाइम बताया 24 आवर्स के लिए, हम उसको सेटलिंग के लिए टाइम देंगे जी, रेजिडेंस टाइम देंगे, लेकिन फिलिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होगा दूसरे ड्रम के लिए? उसके लिए भी 24 आवर्स करने पड़ेंगे हमें ताकि दोनों ड्रम्स को हम काम मिले सके। देखें दोनों ड्रम साइमल्टेनियसली ही काम कर रहे हैं ना। जब आप शुरू में कर रहे हैं तो शुरू के अंदर तो आपके पास स्कोप नहीं है। आप पहली जब साइकिल कर रहे हैं आपने 24 आवर्स की साइकिल दे दी, आपके पास एक ड्रम फिल हो गया, सही है। जब आपका फिल हो गया ड्रम, यहाँ पर इन्होंने एक चीज नहीं बनाई है, दोनों ड्रम के बीच में वाल्व्स होते हैं। मेरा अगला सवाल यही था पूछने के लिए कि दोनों ड्रम्स की अगर आपको चेंज करना है तो किस तरह चेंज करेंगे। देयर आर वाल्व्स ओवर हियर व्हिच इज नॉट शोन इन द प्रोसेस डायग्राम। बेसिकली यू चेंज द वाल्व डायरेक्शन and you go from one drum to another. अब जो आपका दूसरा एम्प्टी ड्रम था वो आपका 24 आवर टाइम के अंदर फिल होना शुरू होगा। आप वो टाइम को फिक्स रख लेते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि 24 आवर साइकिल आप करें। जो आपकी जो दूसरा वाला जो ड्रम है वो उतनी साइकिल के अंदर या उसी टाइम पीरियड के अंदर आप उसका कोक रिमूव करना शुरू हो जाएंगे। ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अच्छा, कहाँ पर था मैं? The hot vapors in the coke drum are quenched by the liquid feed. Again, I gave you the important reason that why they are quenched. The drums are about 4 to 8.5 meter in diameter and they are about 25 to 35 meter high. अच्छा, ये मुझे बताएं। The temperature in the coking drum is less than that at the furnace outlet, which ranges between 415 to 460 degree. हम तो टेम्परेचर 480 टू 515 दे रहे थे रिएक्शन को, ये 415 टू 460 कैसे आ गया? आउटलेट पे तो 480 तक जा रहा है, 515 तक जा रहा है। सर वो मॉलिक्यूल जिनकी हाई एनर्जी होगी वो तो वेपर फ्लैश आउट कर जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा सा सोचें कि टेम्परेचर मेरा कम कब होएगा अगर कोई रिएक्शन हो रहा है। लाइटर कम, अच्छा काइनेटिक्स सोचें, देखें सर वो, हाँ सर एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, क्योंकि जो क्रैकिंग है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट इज दिस। देखें आप लोग को ये सब कुछ खुद आता है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, आप खुद ही मुझे बता रहे हैं जब टेम्परेचर कम होगा इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलें इसको कहीं आप याद कर भी रख लें, ऑल कोकिंग रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मगर अगर आपको ये नहीं मालूम था कोकिंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये टेम्परेचर कम ही इसलिए हो रहा था बिकॉज दे वर गेनिंग दैट हीट एंडोथर्मिक, so they would, so that is the correct answer. In the coke drum, sufficient residence time is allowed to allow the settlement of coke. When the coke builds up to the predetermined level, आपने एक लेवल सोचा हुआ होता है, जब आपका लेवल आ जाता है the flow is diverted into the other coke drum. And how would the flow be diverted to the other coke drum? By the presence of valves, which I had mentioned. The full coke drum is removed from the process flow. 2-day cycle होती है। अरे यार, 2-day cycle is preferred, sorry for the typo. A 2-day cycle is preferred by most refineries. एक दिन आप कोकिंग में लगाते हैं और दूसरे दिन आप डी कोकिंग में लगाते हैं।
इसीलिए आप डिले कर रहे हैं कोकिंग को। At the end of each cycle, the coke drum is depressured and steamed to strip off the uncondensed vapors. जो भी आपके uncondensed vapors होते हैं उनको आप strip out कर देते हैं और these are then condensed and pumped into the main fractionator. आप whatever देखें, when you're dealing with petroleum products, you want to maximize your product and have as less loss as possible, because even a slight loss is a loss in billions. So you want to maximize your resources. So whatever your resources you're getting, uncondensed vapors, you will try to recycle them. You will try to condense them. You will try to get as much efficiency as possible that you can from the process. So hence you are going to strip them out. मतलब प्रेशर कम करोगे? कोक ड्रम इज डीप्रेशराइज्ड, बस इसका मतलब क्यों करेंगे? हाँ तो सर मतलब आप क्यों कर रहे हैं डीप्रेशराइज्ड? ताकि आप उसको रिसाइकल कर सको ना बाद में। जब आप डीप्रेशराइज इसलिए कर रहे हो, आपको जो भी आपके पास रिमेनिंग चीज है उसको आप रिसाइकल कर रहे हो, रिसाइकल के लिए आप इसको लेकर जाओगे। अच्छा, किस चीज को रिसाइकिल कर रहे हैं? जो देखें, जो आपका कोक है, कोक के बाद आपके पास कुछ अनकंडेंस्ड वेपर्स हो जाएंगे। ये जो अनकंडेंस्ड वेपर्स हैं इनको आप बाद में कंडेंस कर दोगे लिक्विड बना के और आप इसको पंप कर दोगे मेन फ्रैक्शनेटर के ऊपर। अगर आप चले मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर आपका फ्रैक्शनेटर के अंदर एक दफा कोकर ड्रम से अंदर जा रहा है, जो ये ऊपर से यहाँ जा रहा है। दूसरी दफा इस डायग्राम में इन्होंने नहीं दिखाया है, मगर आप अगर दूसरी डिलेट कोकिंग प्रोसेस के डायग्राम्स देखें, वहां पर एक रिसाइकल स्ट्रीम भी होगी। ये सिंपलेस्ट डायग्राम था, इसीलिए मैंने ये पिक्चर प्रेफर करी। रिसाइकल स्ट्रीम के लिए आप ये प्रोसेस करते हो, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए आपको रिसाइकल करना पड़ेगा, चाहे डिलेट कोकिंग हो या आपकी वो प्रोसेस हो, क्या नाम है, फ्लूइड कोकिंग। और अभी मैं आपको चलें, अब हमने रिसाइकल की बात कर दी है तो मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देता हूं, one of the parameters which governs this process is a process variable is a recycle ratio. And what do you understand by the recycle ratio? क्या होगा recycle ratio के अंदर? नाम क्या बता रहा है? प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोडक्ट जो निकल रहा है और जो हम रिसाइकिल कर रहे हैं उसका रेशियो। प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसको और आप अपनी फीट को ऐड कर कर टोटल फीट के ऊपर डिवाइड कर कर वो एक रिसाइकल रेशियो का फॉर्मूला होता है। बाद में आप अपनी फहीम की बुक खोलिएगा, उसके अंदर रिसाइकल रेशियो का फॉर्मूला है, बट इट इज जस्ट द रिलेशन बिटवीन द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट एंड द फीड। रिसाइकिल कोक को रिसाइकिल करेंगे या जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं उनको रिसाइकिल करेंगे? कोक के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप रिसाइकल करते हैं। देखें, आप जितना चीजें रिसाइकल कर सकते हैं ना, आप रिसाइकल करेंगे। अगर आप लाइट कंपोनेंट्स रिसाइकल कर रहे हैं आप वो भी करेंगे, और जो कोक के अंदर से मजीद जो आप देखें पहली दफा प्रोसेस करेंगे तो आपको 100% तो सारे लाइट कंपोनेंट्स बाहर नहीं मिलेंगे ना, कुछ कंपोनेंट्स रह जाएंगे, तो उसको दोबारा निकालने के लिए ताकि आप अपना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें, आप उसको रिसाइकल करते हैं। तो सर रिसाइकिल करके उसको हम कोकिंग ड्रम में डालेंगे दोबारा? जी, कोकिंग ड्रम से ही आप रिसाइकिल करेंगे ना? ठीक है, सही है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बात की थी, दिस वाज जस्ट टिल द कोकिंग ड्रम। कोकिंग ड्रम से थोड़ा बाहर आ जाएं बल्कि अभी भी कोकिंग ड्रम पे ही हैं। द लाइटर क्रैक्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ड्रम, दे लाइटर प्रोडक्ट्स को क्या होता है, दे आर रिटर्न टू द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटर। यानी कोक आपकी पीछे रह जाती है ड्रम के अंदर, और किसी ने मुझे यहाँ पर कहा था द वेपर एंड द लाइटर प्रोडक्ट्स दे गो इनटू द फ्रैक्शनेटर वेयर दे विल सेपरेट द वेपर। दीज वेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ स्टीम, the light products of thermal cracking such as gas, naphtha and gas oils. अच्छा, तो this is easily separated out. ये जो मैंने आपको मेंशन किया था, the drum which is being filled is known as the drum in the
filling mode. The other drum is cut off from the rest of the system. It is known as the cutting mode. Cut off इसलिए मैं बोलता हूँ इसको क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है पूरे ऑपरेशन से, सिर्फ ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए इस ड्रम के अंदर डी कोकिंग हो रही है कि ये एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो, मगर उस साइकिल के बीच में इसका कोई लिंक नहीं है, इसीलिए इसको कटिंग मोड में बोलते हैं। फिर आपकी इस पूरी प्रोसेस के अंदर 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक आपका होता है टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा रिसाइकल रेशियो। These contribute to the quality and the yields of the delayed cooking. Most important of these 3 is temperature. मुझे एक बात बताएं, अगर मैं टेम्परेचर वेरी करूंगा तो बाकी वेरिएबल्स क्या होंगे? सर कुकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो फर्नेस की मेरा ट्यूब में ये क्या सवाल होना नहीं है, शुरू हो जाएगी। ये आप सही बोल रहे हो, मगर मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, बाकी वेरिएबल्स क्या होंगे? मतलब टेम्परेचर की वजह से किस पे फर्क पड़ेगा? नहीं, देखें, when I change one variable, the other variables are constant. That is basically what I'm trying to ask you. At one time, you can only test one variable. So if I'm changing the temperature, the pressure and the recycle ratio is constant. If I'm dealing with the pressure, the temperature and the recycle ratio is constant. तो जब मैं अभी टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, यानी ये जो पूरा पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ है, जो पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पे आप अज्यूम करें कि इस वक्त आपका प्रेशर कांस्टेंट है और आपका रिसाइकल रेशियो कांस्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। Temperature is used to control the severity of the cooking, which means that cooking will depend upon your nature, या how fast, how slow, how strong the cooking is going to take place will purely depend upon the temperature. In delayed cooking, the temperature controls the quality of the coke produced. High temperature will remove the more volatile materials. जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतने आपके जो वोलेटाइल मटेरियल हैं वो ज़्यादा रिमूव हो जाएंगे और आपकी कोक यील्ड कम हो जाएगी। The coke yield will decrease as temperature increases because more volatile materials are being removed. If the furnace temperature is high, the coke may form in the furnace. Do you want that? Is that desirable or undesirable? No, sir. That is undesirable. Therefore, every industry has optimum temperatures, optimum condition. You have to keep all these parameters in mind. You have to keep the parameter of the temperature in the furnace, the temperature at the outlet of the furnace, the temperature in the drum. This is one example, that if the furnace temperature is high, the coke may form in the furnace. Low inlet furnace temperature leads to incomplete coking. यानी आप बीच के अंदर फंस गए हो। अगर आपने फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया तो नुकसान क्या है कि आपका कोक फर्नेस के ऊपर फॉर्म होना शुरू होएगा। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो क्या होगा? आपकी जो प्रोसेस होगी वो इनकम्प्लीट होगी। आपकी कोकिंग प्रोसेस के अंदर प्री मेच्योर कोकिंग हो जाएगी, कोकिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो दोनों तरीके आपके लिए बुरे हैं, इसीलिए हम एक ऑप्टिमम रेंज रखते हैं। जब मैंने आपको पहले रेंज दिया था तो वो रेंज था फ्रॉम 480 टू 515, दैट इज एन ऑप्टिमम रेंज। अगर मैं ओवर स्मार्ट हूँ, मैं बोलूँ मुझे 480 नहीं करना है, मैं 400 कर लेता हूँ, कोकिंग ही नहीं होगी। 400 पे कोकिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? विस ब्रेकिंग अगर आपकी 460 पे हो रही है तो 400 पे इतनी हीट कहाँ से हो रही है कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए? और अगर मैं बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ फिर क्या होगा? सिवियर थर्मल क्रैकिंग हो जाएगी। इतना रैपिडली कोक प्रोड्यूस होएगा कि आपकी प्रोसेस ही नहीं होगी, आपका सारा कोक आपके फर्नेस के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो भी डिजायरेबल नहीं है। दूसरा पैरामीटर प्रेशर। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज द प्रेशर विल इंक्रीज द कोक फॉर्मेशन because a higher pressure will lead to a decrease in pentane and heavier liquid yields. If you increase the pressure, जो आपके liquid components होते हैं pentane and higher, they will
decrease, and as they decrease, your सर किस coke चीज का formation प्रेशर is going इंक्रीज to करेंगे? वेपर्स pressure का जब आप या कोक का? मतलब क्या वेपर्स का प्रेशर या जो हम फीड दे रहे हैं उसका? वेपर का प्रेशर नहीं, आप आपकी प्रोसेस का जो प्रेशर है ना, एक स्पेसिफिक प्रेशर रेंज होता है। मैंने इसको काउंट नहीं किया था, ये भी फहीम के अंदर उन्होंने एक प्रेशर की एक रेंज लिख दी थी, कितनी पीएसआईजी के ऊपर रेंज था, वो मैंने यहाँ पर रेंज लिखी नहीं है। मगर अगर आप अपनी प्रोसेस की प्रेशर बढ़ाओगे, इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ड्रम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक। There is a retention of heavier hydrocarbon in the coke drums. If you increase the pressure, जो heavier hydrocarbons हैं वो coke drums के अंदर रह जाएंगे। If you want to maximize the yield of liquid products, the delayed cokers are designed for marginally lower drum pressures. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए हम जो आपके कोकर्स होते हैं उनको जरा प्रेशर कम रखते हैं। कम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा क्या हो अगर हम प्रेशर कम रखेंगे? सर ये पेंटेन हेक्सेन ज्यादा बने। ये ज्यादा होगा, लिक्विड कंपोनेंट्स आपके ज्यादा होंगे। अगर ये ज्यादा होंगे तो क्या होगा? कोक फॉर्मेशन को क्या होगा? सर मतलब समझे नहीं सर। सर कोक अगर फॉर्मेशन कम क्या होगा? कम होगा। पहली लाइन देखें, पहली लाइन में रिलेशन लिखा हुआ है ना, increasing the pressure increases the coke formation and higher increases the coke formation because higher pressure will lead to a decrease in pentane heavier liquid yields. तो अगर मैं पेंटेन की yields ज्यादा करूंगा क्योंकि मैं प्रेशर कम कर रहा हूं, तो कोक फॉर्मेशन को क्या होगा? कम होगा ना। जी जी सही सही। ऊपर वाली लाइन में जो लिखा है, मैं बेसिकली ऊपर वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन को आपस में रिलेट कर रहा हूं। आप चाहते ये हैं कि आइडियली आप चाहते ये हैं कि आपका जो पेंटेन और लिक्विड कंपोनेंट्स हो वो ज्यादा हो, क्योंकि ये ज्यादातर वैल्यूबल आपके सब्सटेंसेस होंगे। आपको सिर्फ कोक नहीं चाहिए, क्योंकि कोक के अंदर आपके पास अदर इम्प्योरिटीज भी होंगी। What sort of impurities would you get if you take a lot of coke? You will have sulfur, you will have metal, you will have asphaltenes. So you want to keep in the range of minimizing the coke. So सर वैक्यूम minimize पंप the के coke. जरिए से करेंगे प्रेशर कम? क्या आपने कहा ना प्रेशर कम करेंगे, तो मतलब वैक्यूम पंप के जरिए से करेंगे प्रेशर कम, ताकि ये आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाए लिक्विड कंपोनेंट। हाँ, ये आप मेरा ख्याल है वैक्यूम पंप से ही करेंगे। जब आप इसको ड्रम में करेंगे, आप इसको ड्रम का प्रेशर कम करेंगे, यही तरीका लगता है। और कौन सा इसके ऊपर और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। तीसरी जो बात है वो आपका है रिसाइकल रेशियो। रिसाइकल रेशियो ये और प्रेशर का रिलेशन सेम है। Recycle ratio has the same effect as the drum pressure on the product distribution. If the recycle ratio is increased, the coke and the gas yields will increase, while the pentane and heavier liquid yields will decrease. यानी recycle ratio भी आप एक optimum recycle ratio रखते हैं ताकि आप pentane और heavier liquids को थोड़ा सा बढ़ा लें। तो और ऑप्टिमम रिसाइकल रेशियो आपका होता है 1 to 2 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये जो वैल्यूज हैं ये भी फहीम के अंदर कोटेड हैं। सो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो डील करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड इज द प्रेशर, थर्ड इज द रिसाइकल रेशियो। टाइप्स ऑफ कोक फॉर्म फ्रॉम डिलेड कोकिंग। I had mentioned before that the subtypes of delayed coking are the sponge coking, needle coking, and short coke. The only difference between these three types Asphaltene. is the amount of asphaltene contents. I repeat, you do not want asphaltene. Asphaltene is not good for your coke. Before I go on to these parameter, take a look at this picture. Sponge coke versus short coke.
Which of these two would you prefer? आप स्पंज कोक को यूज करते हैं, जो ग्रीन फ्यूल वगैरह है, स्पंज कोक आपकी प्रेफरेंस होती है, शॉर्ट कोक आपकी प्रेफरेंस नहीं है। शॉर्ट कोक को देखें किस तरह से स्कैटर्ड है, क्या है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये अच्छा फ्यूल वैल्यू नहीं देता। और ये इतना स्कैटर्ड क्यों है शॉर्ट कोक? कौन सा कंपोनेंट है जो इसको ये इतना इस तरह खराब बना रहा है, अनडिजायरेबल बना रहा है? सर हाई सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट अपनी जगह, इसके अलावा क्या अभी मैंने मेंशन किया था? एस्फॉल्टीन। एस्फॉल्टीन ये हेवियर कंपोनेंट्स है। अभी ये आपको मालूम इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। स्पंज कोक, स्पंज कोक appearance is spongy, hence its name. It is produced from feeds having low to moderate asphaltene contents. Needle coke, needle coke becomes a needle like structure and it is made from feed having no asphaltene content. It is used to make expensive graphite electrodes for the steel industry. देखें, अगर आपके पास एस्फॉल्टीन है नहीं, वो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसीलिए ये ग्रेफाइट, एक्सपेंसिव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इसके लिए इससे बनते हैं। दिस इज द बेस्ट, यू डोंट वांट एस्फॉल्टीन्स। शॉर्ट कोक क्या है? undesired product with high asphaltene contents. It can be produced if the drum temperature is too high. अभी मैंने आपको बोला था कि अगर ड्रम टेम्परेचर आप हाई रखेंगे तो कोक ज्यादा फॉर्म होगा। ज्यादा कोक अगर फॉर्म होगा तो ज्यादा एस्फॉल्टीन कंपोनेंट्स आपके उसमें रह जाएंगे, कम वेपर कंपोनेंट्स आपके जाएंगे। और आप ये नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मेरे पास अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं, इसकी यूज कम होती है। ये टेबल आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, इसके अंदर आपको इसके यूजेस मालूम पड़ जाएंगे। मुझे एक चीज और पढ़ानी है, थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, सो आई विल कैरी ऑन। Oh, in this thing, the types of coke is given, the conditions are given, the characteristics are given, the sulfur content as well, and the uses are given. But I will repeat, the best of the three coke characterizations are the graphite electrodes. Sorry, what am I saying? Graphite electrodes. I mean the needle coke. The needle coke, because there is no asphaltene present. But this is rare. Getting a needle coke is rare. You will often have some asphaltene present. So if asphaltene is present, you have two options: sponge coke as well as short coke. In these two, the more desirable one is the sponge coke, because the sponge coke has less or moderate amounts of asphaltene, and as it has less amount of asphaltene, it can be used in the green fuels. So as the other short coal is useless as a fuel, it's just wasted. That was the delayed coking process. Now I will tell you about the fluid coking process. Fluid coking process, there are two chambers. One chamber is called the reactor chamber. The other chamber is called the burner. Again, the feed is the vacuum residue. The feed is given inside the reactant chamber, and on the reactant chamber you have something called the scrubber. What do you think is the purpose of the scrubber? अगर मैं आपको इसको वॉश करने के लिए क्या करता है? जैसे SO2 वगैरह जो होती है उनकी रिमूवल, वॉश करता है उनको। मतलब आप ये करो कि एक तरह से प्योरिटी बोलना चाह रहे हो ना, कि एक तरह से प्योरिटी देना चाह रहा है। स्क्रबर का भी यही फंक्शन है। ये जो आपकी फीड वैक्यूम रेजिड्यू आ रही है, स्क्रबर वुड सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स। अगर आप स्क्रबर के ऊपर देखें तो जो रिएक्टर प्रोडक्ट्स हैं, यानी वेपराइज प्रोडक्ट्स और जो अदर लाइटर प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके फ्रैक्शनेटर्स के अंदर जा रहे हैं। जो आपका स्क्रबर है ना, ये फाइन पार्टिकल्स आपके प्रोड्यूस कर रहा है, जो फ्लूइडाइज बेड के अंदर लेयर्ड होते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर द क्रैकिंग टेक प्लेस। ये आपको जो क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं सिंबल को, जो उल्टी कैप बोलते हैं, ये जो कैप आपको नजर आ रही है, ये है क्या नाम, फाइन पार्टिकल्स हैं। स्क्रबर के अंदर भी फाइन पार्टिकल्स हैं
क्योंकि ये रिमूव कर रहा है, और ये पार्टिकल्स रिमूव होकर ये आपके रिएक्टर के अंदर आते हैं। जब मैं प्रोसेस की बात करूंगा फिर आप देखेंगे ये किस तरह आते हैं। तो स्क्रबर का मेन फंक्शन ये है कि ये फाइन पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। जो बाकी जो वैक्यूम रेजिड्यू है वो रिसाइकल हो जाती है आपकी रिएक्टर के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर भी स्टीम ऐड होती है। अब यहां पर तो फर्नेस नहीं है, इधर स्टीम का क्या फंक्शन है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कोई सवाल, या अगर मुझे नहीं मालूम ऑनलाइन टेस्टिंग किस तरह होगी, बट सुनने में ये आया इट माइट बी ऑनलाइन सॉरी एमसीक्यू टेस्टिंग। if I ask you on the basis of MCQ or an open question that why is steam added, या what is the difference between the steam being added in the fluid coking as well as delayed coking, because a delayed coking has a furnace, this doesn't have a furnace, why am I adding steam? Any guesses? चले मैं आपको मैंने एक बेड होता है, बेड को फ्लोडाइज रखने के लिए स्टीम इस्तेमाल करते बस हैं। दैट इज द आंसर। बेड होता है, आप फ्लूइडाइज क्रैकिंग प्रोसेस कर रहे हो, उस बेड को फ्लूइडाइज रखने के लिए आप स्टीम ऐड करते हो। यानी इधर जो स्टीम का पर्पस है वो आपके बेड को फ्लूइडाइज करने का है, इधर कोकिंग से इसका रिलेशन नहीं है। सिर्फ फ्लूइडाइज रखें ताकि आपकी प्रोसेस चलती रहे इसमें। अब अगर ये, और जो दूसरा जो सेक्शन है बर्नर सेक्शन, इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है जो इंपॉर्टेंट है कंबशन के लिए। वो क्या हम ऐड कर रहे हैं? एयर। एयर एयर ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है इन लेमेन्स टर्म, आपके पास दो चेंबर हैं। आपके पास एक रिएक्टर चेंबर है, दूसरा आपके पास बर्नर चेंबर है। आपकी फीड आती है स्क्रबर से, स्क्रबर से आकर ये रिएक्टर के ऊपर सेटल हो जाती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर में सेटल हो जाती है। अब यहां से जो कोक है ये थ्रू नोजल्स ये क्रॉस सर्कुलेट करती है, ये जाती है आपके बर्नर सेक्शन के अंदर। बर्नर सेक्शन के अंदर आप एयर प्रोवाइड कर रहे होते हो, कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद जो आपकी जो फीड होगी वो हॉट हो जाएगी, और हॉट फीड यानी हॉट कोक आपकी दोबारा रिएक्टर के अंदर आ जाएगी। यानी कोल्ड कोक गोस फ्रॉम द रिएक्टर इनटू द बर्नर, वहां पर वो हॉट हो जाती है और हॉट होकर वो दोबारा आपके रिएक्टर के अंदर आ जाएगी। अगर मैं ये हॉट एंड कोल्ड की बात कर रहा हूं यूजिंग सम कॉमन सेंस, would the temperature be same inside the reactor and the burner? सर मैं बोल रहा हूं, नहीं सर। मैं बोल रहा हूं कि कोकिंग, लेट्स से कोकिंग टेम्परेचर होता है about 480 to 515 degrees. That is the coking temperature. Will the temperature be same in both the chambers? नहीं सर। नो सर। किस में बड़ा होगा, ज्यादा होगा? तो बर्नर में ज्यादा होगा। बर्नर में ज्यादा होगा। एक क्लू आपको ये बता रहा था। दूसरा क्लू ये, अगर आप दोनों की कोक कंपेयर करें, रिएक्टर से कोल्ड कोक निकल रही है और यहां से हॉट कोक निकल रही है, हॉट कोक कैसे निकलेगी? जब बर्नर से ही बर्न होगा रिएक्शन टेक प्लेस होगा, जब ही तो वो जाकर हीट होकर हॉट निकल रही है। तो इसको, ये इसका बिल्कुल एक बेसिक सिंप्लीफाइड एक डायग्राम है, ये प्रोसेस डायग्राम है। और मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम भी दिखाऊंगा। ब्लॉक डायग्राम सिंपली आपको सिर्फ ब्लॉक्स बताता है और प्रोसेस बताता है। तो अगर हम इसके ऊपर एक अगला स्टेप लें फ्लूइड कोकिंग प्रोसेस का, fluid coking process is a thermal cracking process consisting of a fluidized bed and a fluidized bed burner. The vacuum residue is the feed. It is heated up to 260 degrees and is fed to the scrubber located above the reactor. Look, your feed is being fed to the scrubber. The purpose of the scrubber is for the fine particle recovery of the coke. It is operated at about 370 degrees. Yani there are different temperatures in every region. The heavy hydrocarbons in the feed, they are recycled with the fine particles to the reactor as the slurry recycle. Your scrubber takes out the fine particles. The fine particles are these upside down caps. These combine with the heavy particles inside the feed, या heavy components, and they become the slurry recycle.
If they become the slurry recycle and they go into the reactor below the scrubber, you can see the fine particles are starting to accumulate inside the reactor. Those caps are shown at the bottom of the reactor. So that is where the layered structure is being formed. The heavy hydrocarbons in the feed are recycled. The reactor operates at 510 to 566 degrees. Again, this temperature is higher than the visc breaking temperature. The heavy residue vacuum feed is injected to the fluidized bed of the coke particles. जो आपकी heavy residue vacuum feed होगी वो आपके fluidized bed के अंदर inject हो जाएगी. उस fluidized bed के अंदर क्या है? coke particles हैं. वो coke particles कहाँ से आए? कहां से आए कोक पार्टिकल्स? सर बर्नर से आए. बर्नर, अभी तो बर्नर की बात ही नहीं हुई है ना. कहां से आए कोक पार्टिकल्स? प्रोसेस जब मैं शुरू करूंगा सर वो स्क्रबर से आए होंगे. बिल्कुल स्क्रबर से आए. वंस द फीड इज क्रैक्ड, आपने जब रिएक्टर के अंदर क्या हुआ? आपने जब स्क्रबर में जो कोक पार्टिकल्स होंगे वो तो ये आपका लगा रिएक्टर से ही आ रहे होंगे ना उड़ के. शुरू के अंदर थोड़े थोड़े आपके रिएक्टर के अंदर आते हैं और जब आप फीड डाल रहे हो तो ये रिएक्टर से ही आ रहे होंगे, मगर ये फिर जब रिसाइकल हो रहे हैं तो रिएक्टर के अंदर जा रहे हैं. इनिशियली जो आपका जो रिएक्टर है उसके ऊपर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, स्क्रबर से मजीद जाते हैं और एक लेयर फॉर्म करना शुरू हो जाता है, एक लेयर्ड पैटर्न होता है. The heavy residue vacuum feed is injected to the fluidized bed of coke particles. Once the feed is cracked, the lighter gases and vapor will go through the scrubber in the distillation column. Very good. आपका lighter gases और vapor separate हो जाएंगे. The coke that is produced in the reactor is laid down on the coke bed particles in a layered manner. Steam is added to the bottom of the reactor. The reason why I did not tell you what steam is used for is because I wanted to ask you where steam is used, because I don't know the phenomena right now. Maybe you are going to have an exam or test on these online classes in the coming days, and if we have an online test, the assignment is going to be MCQ based or some sort of thing like that. So there these points are important. This is why for future classes, in case I teach you in the 8th semester or they give me a subject, for my future classes I would like that with my slides you keep a book with you and jot down the points which I mention on the book, that why is steam used, why are these processes being used. It will be beneficial. A portion of the coke will flow into the burner. From the reactor, a portion of the coke will flow in the burner, where approximately 15 to 30 is combusted by the air of the burner. Air is being added. About 15 to 30% of the coke is being burned. The rest of the coke is recycled back to the reactor to provide heat. And what would be this coke? This coke would be hot. Of course, it's going to be hot, and that is why it is referred as the hot coke, because of the heat. Look at the operating conditions of the burner. The burner operates around 593 to 677. The combustion of the coke produces flue gases with low heating values. So if we look at the block diagram, as I said, a block diagram is made just to simplify the process. In this block diagram, I'm taking the left hand side with the right hand side. Look, there are two chambers. There is the reactor and the burner. We are dealing with the reactor chamber first. The residue is added in the reactor. From the reactor, the products are being fractioned. They are being fractioned. What does the fraction, how are they being fractioned? The scrubber and the fractionator. The scrubber will remove the fine particles. The fractionator will take them into the distillation column. Once it goes in the distillation column and it is removed, the product upgrading is going to take place. The distillation tower is going to give the gas products, the light products. That is the reactor side. From the reactor side, then we have the burner side. I had already mentioned that the coke that is layered up
15 to 30% of it goes inside the burner. So, sorry, not 15 to 30%, 15 to 30% is consumed. Some coke is going inside the burner. The coke compared to the coke in the burner is cold coke. Hence, we refer to this coke as the cold coke. It is going in the burner. Now, if we take the burner into consideration, air is added into the burner. If air is added into the burner and the reaction is taking place, some of the coke was recycled back into the reactor. If it was recycled back into the reactor, what would be the nature of coke? It would become hot coke. From the burner, it is going into the boiler for particulate removal, because we are removing the flue gases. So the particles are removed from the burner, and at the other end we have the product upgrading. So one side there is product upgrading, the reacted side. The other side, the burner side, the particulates are removed. The only product that we get from the burner is flue gas. If you did your CPP1 and your CPP2, you must have remembered the burner process, and always flue gas was being removed. What was the other name for the gas, if anyone remembers? This is the slightly out of the course, but what was the gas called, which was slightly different from flue gas? प्रोड्यूसर एक नाम होता था उसका. प्रोड्यूसर गैस Stack gas. सर प्रोड्यूसर गैस Producer gas भी थे. Ever heard of stack gas? हेमिल ब्लो में थे. अच्छा Yes. खैर, ये थोड़ा सा मैंने डाइवर्ट करने के लिए वैसे ही पूछा था, मगर अगर आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ आ गई है, यू कैन कंपेयर इट विथ दिस डायग्राम. सो लुकिंग एट दिस प्रोसेस डायग्राम, यू कैन इजीली टेल what the process is being, how the fluid coking process is taking place. Now, a special type of fluid coking process is the flexi coking process, but I am short of time, so that process is going to be covered for another lecture. If there's going to be another lecture, we will continue our lecture and do fluid flexi coking. सर In आई हैव that- अ क्वेश्चन. जी पूछें. Let me at least wrap it up then. So we will cover that in flexi coking. So just to have a recap, what we did today was first of all we dealt with coking. We found out what the definition of coking was, what type of process, we understood the coking process. Then we understood the types of coking process which are used, the two major types. We understood the process diagrams, and then we were able to distinguish between the coking process which are used in the industry. Looking at the type of the coke, we can also distinguish that whether it is a delayed process, whether it is a needle process, a sponge process, or a short process. So on basis of that, I will conclude this lecture over here, and that was all that. So stopping the recording right now. Thank you for your time and wish you good luck. थैंक यू सर. You're welcome. चल, बस आई होप समझ आ गई हो ये प्रोसेस. जितना मैं आसान कर सकता था मैंने कर ली थी. बाकी आपकी क्लासेस कोई और लेगा. ठीक है सर. चल, अल्लाह हाफिज. सर एक सवाल पूछना था इससे हटके एक. यार पूछें. सर ये कैरोमेरोक्स हमने पढ़ा था ना, उसमें ये होता है कि मर्सेप्टेन जो मर्केप्टेंस कैरोमेरोक्स जी हाँ, उसमें ना मर्केप्टेंस जो होती है ना उनको डाइसल्फाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जी. लेकिन सर वो सल्फर तो वैसे ही रहा ना, सल्फर तो कम नहीं होता उससे, वो तो फिर भी उसके अंदर ही रहती है. तो हमारा मकसद सल्फर को रिमूव करना नहीं होता या सिर्फ मर्सेप्टेन को कन्वर्ट करना होता है? यार वो अलग प्रोसेसेस होती हैं. मैं इसका इस वक्त आपको सही जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैंने भी इसको रिवाइज नहीं किया है. लास्ट टाइम मैंने पीआरई पढ़ाई थी 2 साल पहले. मैं इसको देखकर आपको इसका जवाब दे सकता हूँ,
क्योंकि ये असल में मैंने आपके लेक्चर्स देख रहा था, आपने लास्ट क्लास के अंदर आप ये सल्फर का मरकैप्स वगैरह पढ़ रहे थे जो अपलोड है, तो ये आप मतलब अपने सर से ही पूछें, क्योंकि मुझे इस वक्त इसका आंसर सच्ची बात है मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने रिकैप नहीं किया हुआ है, तो ये इसका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। और कोई सवाल? क्योंकि फिर मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी काम है, तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। बाकी अच्छा सुने, अगर किसी को सवाल हुआ या कोई चीज हो, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, क्योंकि डायरेक्ट व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा अगर कभी किसी ने कोई सवाल या कुछ पूछना हो। श्योर सर। सर चलें, अल्लाह हाफिज। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की।